Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is the female reproductive organ and oogenesis. Female reproductive organ I already teach you. Previously we have discussed the male and female reproductive organ, but with oogenesis I want to repeat some important things regarding this female reproductive organs. Now these are the objectives. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्टेप्स ऑफ oogenesis, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द oogenesis। सो आंसर इज द प्रीनेटल एंड द पोस्टनेटल। दीज आर द स्टेप्स। व्हाट आर oogonia, फ्रॉम वेयर दे कम्स, एंड व्हाट आर द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी और प्रीनेटल फॉलिकल, सेकेंडरी और एंटर फॉलिकल, प्री ओव्यूलेटरी एंड ग्रेफिन, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। As you know, what are the organs of the female reproductive organs? Female, this is the uterus. ये एरो जहाँ नज़र आ रहा है, this is the uterus, this is fundus, and this is the cervix part of the uterus, and lower part is this is called the vagina, and interior part of the uterus is related with the urinary bladder, while the posterior part is related with the rectum. This is a pouch. This is because the surface of the uterus is covered by a peritoneum. Peritoneum में बारीक सी कवरिंग है जो इसको कवर करती है, and this peritoneum posteriorly it reflected from the middle part of the rectum and goes anteriorly and then posterior part of the rectum. तो ये बीच में यहाँ पे एक स्पेस बन गई जिसको कहते हैं रेक्टो। दिस इज रेक्टम, दिस इज यूट्रस, रेक्टो यूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, तो पहले हमने पढ़े थे कि सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से थे। oogenesis इज मेनली कंसर्न विद ओवरीज, मेनली कंसर्न विद ओवरीज। दीज आर दी ओवरीज, दिस वन ओवरी एंड दिस इज दी अदर ओवरी। टू नंबर ऑफ दी ओवरीज आर प्रेजेंट एंड दिस इज fallopian tube, these are the parts of the fallopian tube, fimbria and infundibulum, this is the ampulla where the fertilization take place, and this is the isthmus and intramural part which is present inside the uterus. This is the ovary. Ovary is connected with the uterus by a ligament. This ligament is called the ligament of ovary. Okay, now when we cut the ovary we see that this is the medulla which consists of the arteries and veins, while the cortex consists showing the different parts of the development of the oogonia into this process is called the oogenesis. So we are going to discuss in detail the oogenesis. And this is uterus, uterus fundus and body. This is cervix, internal lobes and external lobes, and this lower part is the vagina. ठीक है, अब डिटेल में इनकी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं पिछले लेक्चर में इसको मोस्टली डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, दी यूट्रस की लेयर्स भी मैंने आपको बता दी थी। फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड इज द पेरीमेट्रियम, एंड दिस इज स्मूथ मसल्स कंसिस्टिंग ऑफ कंपोज मायोमेट्रियम अबाउट 12 to 15 millimeter in diameter, and this is the epithelium, simple columnar epithelium and also called the endometrium। ठीक है, ये भी वही चीज़ दिखाई है रिलेशन यूट्रस के। दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस, दिस इज epithelium forming the glands, endometrial glands, these are the smooth muscle, myometrium। Okay, now as you know the parts of the fallopian tube we have discussed previously. What are the parts of the this is the ovary, this is medulla consisting of blood vessels, and this is the ovary cortex. So the oogenesis take place in the cortex. First of all, I have told you in meiosis 1, meiosis 1 जब मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहाँ से आते थे, वॉल ऑफ द यॉर्क सेक्स। ठीक है, वॉल ऑफ द यॉर्क सेक्स से जब आए तो वॉल ऑफ द यॉर्क सेक्स से जब आते हैं पोस्टीरियर ब्राह्मण वॉल पे, तो वहाँ डिसाइड होना होता है कि भाई यहाँ ओवरी बनेगी, तो देन दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर कॉल्ड दी oogonia, और अगर टेस्टिस बननी होगी देन दे आर कॉल्ड दी spermatogonia. Now we are discussing the
discussing about the oogenesis. Oogenesis mean oogonia. From the primordial wall of the yolk sac, the cells coming are known as the primordial germ cells. When they reaches the posterior abdominal wall of the fetus and developing the female, these primordial germ cells are called the oogonia. So now the oogonia में अब यहाँ पे मेनली यहाँ से शुरू है. यहाँ पे आप देखते हो दिस इज दी यॉक सैक. ठीक है, ये बेबी है. इस बेबी का भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये मेल और फीमेल है. ये बेबी इज प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस. ठीक है, अब ये वॉल ऑफ द यॉक सैक से आप देखो, दीज आर द सेल्स आर कॉल्ड द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द यॉक सैक. और ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है. पोस्टीरियर एब्डोमेनल वॉल में ये शिफ्ट होते हैं. यहाँ पे भी डिटेल में दिखाया, दे आर यॉक सैक से शिफ्ट हो रहे हैं किसमें, पोस्टीरियर एब्डोमेनल वॉल में. एंड दिस रिज इज कॉल्ड द गोनेडल रिज. ये जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज द गोनेडल रिज या जेनाइटल रिज, जहाँ पे ओवरी एंड टेस्टिस डेवलप होते हैं. तो फीमेल है तो ओवरी डेवलप होगी. देन ये primordial germ cells from the wall of the yolk sac when reaches into the gonadal ridge or genital ridge, if they are forming the ovary, they are known as the oogonia, not the primordial germ cells. ठीक है, primordial germ cells कहाँ पे होंगे, जब यहाँ पे wall of the yolk sac में, जब ये ओवरी बनाने के लिए चले गए तो इनका नाम क्या हो गया, oogonia. ठीक है, अब बेबी जब 5th मंथ का होता है, अब डिसाइड तो हो गया कि ओवरी बनेगी. जब 5th मंथ तक ये oogonia सारे जितने भी हैं, दे रिमेन इन माइटोसिस. माइटोसिस होती रहेगी, इंक्रीज नंबर इंक्रीज होते रहेंगे. तो 5th मंथ तक ये 7 मिलियन तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, 5th मंथ के बाद बिफोर बर्थ. ठीक है, अब ये सिर्फ बिफोर बर्थ हो रहा है. तो 5th month of the intrauterine, after 5th month of the intrauterine life, these oogonia undergo meiosis 1. So before entering into the meiosis 1, अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के पास और oogonia के पास both contain the 46 number of chromosomes mean diploid and the DNA amount कितना होगा 2. So before entering into the meiosis 1, which is also called the reduction division, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होते हैं. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इसके पास दोनों के पास, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और oogonia दोनों के पास ये डबल है, डिप्लॉयड है 46. ठीक है, तो उसको ये ऑटो डबल नहीं करेगा, लेकिन जो DNA अमाउंट 2 है उसको ये 4 करेगा. जब इसके पास DNA अमाउंट 4 हो जाएगा, नाउ दे आर कॉल्ड द प्राइमरी oocyte. अब ये oogonia नहीं होंगे. ठीक है, तो meiosis 1 में एंटर कौन होगा, प्राइमरी oocyte, विच कंसिस्ट ऑफ DNA नंबर 4 एंड द क्रोमोसोम्स नंबर 46. ठीक है, अब ये गया, तो यहाँ पे जब ये अब ये क्या देखा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल फ्रॉम द वॉल ऑफ द यॉक सैक में गया और ओवरी बना रहा है, तो उसका नाम क्या होगा, oogonia. और जब इसने अपना DNA डबल कर लिया, 4 कर लिया, नाउ दे आर कॉल्ड द प्राइमरी oocyte एंड दे आर अरेस्ट इन प्रोफेज के कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन में, जो मैंने आपको पिछली मरतबा पढ़ाया था. meiosis 1 में प्रोफेज में जब ये जाता है तो उसमें 5 स्टेजेस थे. 4th स्टेज का नाम था डिप्लोटीन स्टेज. In diplotin stage, this primary oocyte will be arrested for 12 year or 11 year, जब तक प्यूबर्टी नहीं होगी. ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte यहाँ अरेस्ट हो गया. अब ये देखो इस डायग्राम में, ये जो ऊपर डायग्राम देखो, दिस इज फीटल पीरियड. फीटल पीरियड में देखो oogonia है, माइटोसिस हो रही है मुस्तकिल. मैंने कहा 5th मंथ तक माइटोसिस होती है, तो नंबर ऑफ oogonia हो जाते हैं फिर 7 मिलियन. ठीक है, फिर जब meiosis में एंटर होना होता है बिफोर बर्थ ही, ये फीटल पीरियड पे ही, तो ये प्राइमरी oocyte हो गया. अब प्राइमरी oocyte के पार्ट कंसिस्ट ऑफ द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द DNA अमाउंट इज 4. ओके, नाउ इट इज अरेस्टेड इन प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 एंड डिप्लोटीन स्टेज अप टू प्यूबर्टी. ठीक है, ये नीचे वाली जो ब्लू साइकिल है, दिस इज शोइंग दी साइकिल अकरिंग इन दी प्यूबर्टी टू मेनोपॉज. ठीक है, तो अब प्राइमरी oocyte जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, मीन गर्ल कितनी है, 12 या 13 ईयर या 11 ईयर, तो अब वो प्यूबर्टी में ये सारे स्टेजेस जो होंगे, दे अकर इन दी oogenesis विल स्टार्ट इन विद इन दी कॉर्टेक्स ऑफ दी ओवरी. अब ये जो इस साइड पे ये सारा कुछ दिखा है, दे आर अकरिंग इन दी कॉर्टेक्स ऑफ दी ओवरी. ठीक है, अब कॉर्टेक्स ऑफ दी ओवरी को हम जब डिटेल में देखें, दिस इज दी
पीछे भी एक डायग्राम में था ये वाली, ठीक है। कॉर्टेक्स ऑफ ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। अब दिस इज दी, ये जो एक लाइनिंग नज़र आ रही है, दिस इज द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द ओवरी विच इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम प्रोवाइड्स द सेल्स टू द ग्रोइंग follicle, मीन प्राइमरी oocyte। So this epithelium is also called the germinal epithelium. So if when the primary oocyte is surrounded by the flattened cells, now it is called the primordial follicle. अब वही जो प्राइमोडियल जर्म से वाला भी जोक्सेक में आया था, इधर आया था, ऊगोनिया में था। ऊगोनिया में फिर ये 5th मंथ तक ऊगोनिया माइटोसिस में ही रहा, 7 मिलियन तक बन गए। फिर 5th मंथ के बाद इंट्रायूट्राइन लाइफ में मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई। मियोसिस 1 इज़ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। अब रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो अपने डीएनए डबल किया, उसमें इस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी जो है वो उसको सेल दे रही है सराउंडिंग, ठीक है। अब ये फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, तो जब इसमें फ्लैटन एपिथेलियम होंगे, दिस ऊगोनिया इज कॉल्ड दी प्राइमरी oocyte नाउ कॉल्ड दी प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। यही सेल जब क्यूबॉइडल टाइप के हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। और या प्राइमरी फॉलिकल, वो प्राइमरी oocyte था। प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte में फ़र्क है, ठीक है। प्राइमरी oocyte जो मियोसिस 1 में एंटर हुआ, उसमें कोई भी कवरिंग नहीं थी एपिथेलियम की, ठीक है। जब फ्लैटन एपिथेलियल है तो नाउ दे आर प्राइमरी oocyte इज नाउ कॉल्ड दी प्राइमोडियल फॉलिकल। और जब वही क्यूबॉइडल टाइप हो गए तो उसमें क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और ये सेल अब लेयर्स में बढ़ते जा रहे हैं। नाउ दे आर कॉल्ड द ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या कहलाएंगे, ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ग्रेन्युलोसा सेल्स में अंदर है, और यहाँ पे आप देखो ये oocyte के अंदर जब इतना कुछ बाहर इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो oocyte एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को सिक्रीट करेगा, और ये जो ग्रेन्युलोसा सेल हैं ये भी उसकी हेल्प करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को सिक्रीट करने के। वो अपने अंदर सराउंडिंग पे एक लेयर बना देगा जिसको हम कहेंगे जोना पेलिसिटा। आगे चल के मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप देखो ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर एक छोटी सी कैविटी बनी, पहले एक ये कैविटी बनी, दूसरी कैविटी बनी, फिर ये कैविटीज आर बिकम्स कोलेसिस। कोलेसिस मीन कंबाइन एंड फॉर्म अ लार्ज कैविटी कॉल्ड द फॉलिक्यूलर एंट्रम, एंड दिस एंट्रल कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड, ठीक है। इस कैविटी के बनने की वजह से ग्रेन्युलोसा सेल्स बिल्कुल पेरिफेरी में देखो यहाँ पुश होते जा रहे हैं, ठीक है। पुश हो गए। अब पुश होने के बाद दोज ग्रेनुलर सेल्स विच सराउंड्स दिस प्राइमरी oocyte, नाउ दिस प्राइमरी oocyte तो नहीं, अब ये क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो इस these cells are which surrounds this follicle is called the cumulosuphorus। ये सारे जो इर्द गिर्द हैं ये तो ग्रेनुलोसा सेल ही हैं जो इसको यहाँ कवर कर रहे हैं मून लाइक, हाफ मून लाइक शेप में, इसको हम कहेंगे क्यूमुलोसुफोरस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये सरफेस ऑफ ओवरी में इसका साइज़ कितना बढ़ गया है, सरफेस ऑफ ओवरी को इसने कितना बल्ज किया। ये जो इधर एक फॉलिकल है, दूसरा फॉलिकल, इसके बीच में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू देखो, यहाँ पे आप देखो फॉलिकल और इसके सरफेस एपिथेलियम के बीच में यहाँ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज रिच इन ब्लड वेसल। अब ये इसको जब यहाँ पे बिल्कुल बल्ज करके टच कर गया मैच्योर होने के बाद, तो यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल रिमूव हो गया। दिस इज नाउ इज कॉल्ड दी एविस्कुलर पॉइंट, एंड दिस एविस्कुलर पॉइंट इज कॉल्ड दी स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ से ओव्यूलेट करेगा ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक। तो दिस इज द मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। अब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल की डिटेल में मैं आपको डायग्राम आगे भी दिखाऊंगी। तो ये सारा कुछ ही लिखा हुआ है इसमें कि 5th मंथ तक माइटोसिस में रहते हैं और 7 मिलियन तक मौजूद हैं, ठीक है। और फिर सेल डेथ बिगिंस मीन दे एंटर इनटू द मियोसिस, ठीक है। अच्छा, बाय द 7th मंथ में मेजॉरिटी ऑफ द oogonia जो है वो डिजनरेट। एट द टाइम ऑफ बर्थ में एक भी oogonia नहीं होगा, सारे हमारे पास प्राइमरी oocyte होंगे। क्या होंगे, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और वो जितने भी प्राइमरी oocyte होंगे दे आर रेस्ट इन दी प्रोफेस ऑफ द मियोसिस 1 इन डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। और द प्राइमरी oocyte टुगेदर विद इट्स सराउंडिंग एपिथेलियल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड द प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो दीज आर दी oogonia। अभी क्योंकि 4th मंथ है, क्योंकि 5th मंथ तक तो ये oogonia ही डिवाइड होते रहते हैं, सारे oogonia हो गए। अब यहाँ पे
प्राइमरी oocyte 5th मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगी meiosis 1, तो प्राइमरी oocyte कुछ आपको थोड़े से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ पे देखो, ये वो लाइनिंग एपिथेलियम है फ्लैट, जो पूरे सेल के ग्रुप को कवर किया हुआ है। इनिशियली ये सेल के ग्रुप को कवर करती है, अब यहाँ पे आप देखो एक एक सेल को अलग से कवर किया हुआ है जर्मिनल एपिथेलियम में, ठीक है। तो जब एक एक सेल को अलग से कवर किया है इस फ्लैटन एपिथेलियम में, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी oocyte इन प्रोफेज 1, 7 मंथ है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये और भी मज़ीद डेवलप हो गया है, ये फॉलिकुलर, दीज सेल्स आर नाउ कॉल्ड दी फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अभी तक ये डिप्लोटिंग स्टेज में है। न्यू बॉर्न में अब हमारे पास कोई भी यूगोनिया नहीं होगा, सब क्या होंगे, प्राइमरी oocyte होंगे, ठीक है। एंड प्राइमरी oocyte के पास डीएनए कितना है 4 और क्रोमोसोम्स कितना है 46 क्रोमोसोम्स, तो सबके इनके पास भी डबल थे, यूगोनिया के पास भी, लेकिन डीएनए जो है वो उसके पास, यूगोनिया के पास 2 था, प्राइमरी oocyte के पास 4 हो गए, क्योंकि अब ये रिडक्शन डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डीएनए वगैरह लिखा हुआ है कि किसके पास कितने डीएनए हैं सारा, तो ठीक। अच्छा, अब जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई 11 या 12 मंथ में, ओ सॉरी ईयर में, आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी 5 to 15 प्राइमरी oocyte begins to mature for the maturation, mean they enter into the oogenesis। कितने, 5 से 15 प्राइमरी oocyte एंटर हुए मैच्योरेशन के लिए, मीन oogenesis में एंटर हुए ईच ओवेरियन साइकिल में, ठीक। लेकिन इन 15 में से मैच्योर सिर्फ एक होता है, फुल मैच्योर, जिसको हम ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं। बाकिया जो है वो 14 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेल का दिखाया, मेल में इसमें सारा, अभी मेल का तो अगले नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें देखो एंड रिजल्ट में 4 इक्वल सेल बने हैं, जिसके हर एक के पास साइटोप्लाज्म कंप्लीट है। यहाँ फीमेल में चेंज है, एक के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, बाकी पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी भी कभी कभी डिवाइड हो जाती है, तो 3 हमारे पास पोलर बॉडीज बन जाती है, ठीक है। oogenesis में अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ये वही चीज़ लिखी हुई है, पोलर बॉडी के पास कितने oocyte हैं, और डीएनए 23 है और 2 है, और क्रोमोसोम्स कितने हैं 2 हैं, ये भी BCQ आ सकता है, ठीक। अब ये नंबर मैंने लिखे हुए हैं कि प्राइमरी oocyte के पास किस मंथ में कितनी तादाद है, एट बर्थ में कितने हैं, एट प्यूबर्टी में कितने हैं, सेकेंडरी। अब जब हमारे पास एट प्यूबर्टी में ओवुलेशन शुरू होती है, मीन पीरियड शुरू होता है, ठीक है, तो हमारे पास कितने मौजूद हैं प्राइमरी oocyte, 40,000, ठीक है। और सेकेंडरी oocytes जो है, अब क्या होगा कि जैसे ही साइकिल स्टार्ट होगी तो हमारे पास क्या साइकिल कितने डेज़ की है, 28 डेज़ की, तो मिड क्या हुआ 14 डेज़। तो मिड में शुरू के 14 डेज़ में जो हार्मोन है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि उस फॉलिकल को बनाने में हेल्प करता है। और जो बकिया 14 डेज़ हैं उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। वो अब क्या है कि अब यहाँ पे ये वही चीज़ दिखाई है, यहाँ पे फ्लैटेंड सेल है, इसका नाम क्या है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल। अब ये वो रेड कलर का वो ज़ोना पेलिस्टिडा है विच इज़ सिक्रेटेड बाय द प्राइमरी oocyte एंड द ग्रेनुलोसा सेल, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैनी लेयर हो गए। अब ये जो इर्द गिर्द आप देख रहे हो दिस इज़, अब ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे, ओवरी के कॉर्टेक्स में, ये रहा, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू भी इर्द गिर्द इसके अपने लेयर बना देता है, जिसको हम कहेंगे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहे हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बनना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब ये सारा कॉर्टेक्स दिखाया है, दिस इज द सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी विच इज़ क्यूबॉइडल, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ओवरी, दीज आर दी ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब oogenesis में अब हमें क्या हुआ है कि जब पीरियड स्टार्ट हुए, जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुआ तो साइकिल शुरू हुई, तो 14th डे इनिशियली में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इसको ग्रेफिन फॉलिकल बनाया। अब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का साइज होता है 25 मिलीमीटर, ठीक है, नैनोमीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, 25 मिलीमीटर, ये BCQ में पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब साइकिल स्टार्ट हुई, अब ये मैच्योर हो गया जब कंप्लीट, तो सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी के साथ आके टच हो गया, स्टिग्मा भी बना दिया। तो स्टिग्मा बनाने के बाद अब यहाँ से ये ओव्यूलेट होगा, क्या होगा, ओव्यूलेट जब होगा, जैसे यहाँ से ओव्यूलेट हो रहा है, तो ये कब होगा, एट 14th डे।
उससे ये सारा ये यहाँ पे जो था जितना मैच्योरेशन हुई 14 डे में, शुरू के 14 डे में, उसमें कौन से हार्मोन ने इसको हेल्प की मैच्योर होने में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, 14th डे पे एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, उसकी सर्ज होगी, मीन इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से ये ओवुलेट करेगा। और ये देखो ओवा बाहर आ गया, ओवम, और अंदर क्या रह गया? ये थीका एंटेना भी अंदर रह जाएगा, थीका एक्सटर्ना भी, और ग्रेन्युलोजा सेल भी। फॉलिकुलर एंट्रम तो रप्चर हो गई, उसके फ्लूइडनेस को बाहर क्या क्या निकला? दिस oocyte और ग्रेन्युलोजा सेल्स, जिनको हमने कहा था क्यूमुलोसिफरस। तो जब ये क्यूमुलोसिफरस यहाँ बाहर आ जाएंगे तो इन्हीं सेल को हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब ओवुलेटेड जो ओवम है, अब ये सवाल पूछा जाता है कि अदर इट इज़ प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो प्राइमरी oocyte था 36 आवर पहले, ओवुलेट होने से पहले ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर देता है। मीन डिप्लोटिन स्टेज में रेस्ट था ना, तो डिप्लोटिन स्टेज को भी कंप्लीट करेगा। डिप्लोटिन स्टेज तो प्रोफेस 1 का स्टेज था, फिर प्रोफेस के दूसरे स्टेज में मेटाफेस एनाफेस, उनको भी कंप्लीट करके 36 आवर पहले ही अपनी ओवुलेशन से 36 आवर पहले ही अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। जब मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, नाउ इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte। तो 3 आवर्स पहले से, अब इसका मतलब है कि ओवुलेशन से पहले ये अपनी मियोसिस 2 का स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि मियोसिस 1 भी कंप्लीट कर ली। तो जब ये ओवुलेट होता है तो मियोसिस 2 के मेटाफेज में फिर अरेस्ट हुआ हुआ था। तो एक इसी की पूछते हैं कि जब oocyte ओवुलेट होता है तो ये प्राइमरी होता है या सेकेंडरी? सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी के पास क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23, और नंबर ऑफ DNA कितना है? 1। ठीक है, क्योंकि पोलर बॉडी भी ले गई। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे इसके पास, हमारे पास जो है वो सेकेंडरी oocyte है, तो और कौन से स्टेज में अरेस्ट है? मेटाफेज 2 में। ठीक है, ये BCQ आता है। तो पीछे स्ट्रक्चर रह जाता है, दिस इज कॉल्ड दी कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम, अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कार्पस लूटियम 4 मंथ तक प्रेगनेंसी के मेंटेन रहता है, ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है, फिर प्लासेंटा अपना फंक्शन ले लेता है, क्योंकि वही हार्मोन बना देता है। ठीक है, और अगर ये प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसका मतलब ये डिजेनरेट हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहेंगे? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, और अगर ये बिल्फर्स, अब ये तो मैंने कहा था ना 5 to 15 एंटर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो, और मैच्योर पूरा एक होता है। अब बकिया जो डिजेनरेट हो जाते हैं, जो मैच्योर में मैच्योरिटी तक नहीं पहुँचते हैं, उनको हम कहते हैं कार्पस एट्रेटिकम। ठीक है, तो ये एक ऑस्पी में सवाल पूछते हैं, डिफाइन द कार्पस एल्बिकेंस एंड डिफाइन द कार्पस लूटियम एंड कार्पस एट्रेटिकम। ठीक है, ये मैंने इधर लिखे हुए भी हैं, तो आप उनसे भी उनको कर लीजिएगा। डायग्राम से मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि थोड़ा डायग्राम पढ़ना आए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, और तो फर्टिलाइजेशन, अब जब ये ओवुलेट हुआ तो क्या था? सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte किस में अरेस्ट था? मेटाफेज के मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये मेटाफेज 2 में ही डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा इसमें मैंने वहाँ लिखा हुआ है जो मैंने बताया। ठीक है, ये अब एक सवाल पूछते हैं कि हमारे पास तो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है 11 to 12 ईयर से शुरू होती है, और मीनोपाज की, जो मीनोपाज मीन स्टॉपेज ऑफ द पीरियड्स, तो स्टार्ट को हम कहते हैं मेनार्की और स्टॉपेज को कहते हैं मीनोपाज। तो हमारे पास जो टोटल एज में जो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ में ओवुलेट हुआ होता है, ये 480 होते हैं या 500। ठीक है, और इनमें क्योंकि हमारे पास टोटल 40,000 थे, 40,000 में से जो एक हर 5 to 15 एंटर होते हैं, बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं। 1 जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, तो टोटल मैच्योर वाले यूज़ होते हैं ना, बाकी तो नहीं होते। तो जो मैच्योर यूज़ होते हैं उनकी जो डेट है, उनकी जो अमाउंट है 480 और 500। ठीक है, तो ये 12 सेकेंडरी oocytes आर ओवुलेटेड पर ईयर, क्योंकि हर मंथ में एक ओवुलेट होता है ओवा। ठीक है, अच्छा, तो टोटल यूज़ इतने हुए। और अगर कोई कंट्रासेप्टिव पिल ले रहा है तो फिर उसमें थोड़ा चेंज है, विच प्रिवेंट द ओवुलेशन, तो उसमें चेंज होता है। ठीक है, ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब
अब ये मैंने सारा बताया हुआ है कि डिप्लोटिन स्टेज में रहते, ये सब पढ़ोगे तो सारा वही जो मैंने डायग्राम में आपको डिटेल कर में बताया, ये सारा वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा ये अब ये कहते हैं कि ये डिप्लोटिन स्टेज में इतने सालों तक अरेस्ट रहा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आएगी, तो पहले तो कहते थे कि दिस इज़ द सेफ पीरियड। वेदर द डिप्लोटिन स्टेज इज द मोस्ट सुटेबल फेज टू प्रोटेक्ट द oocyte अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इज अननोन, ठीक है। लेकिन अब आजकल ये करें द फैक्ट दैट द रिस्क ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इंक्रीजेज विथ मैटरनल एज इंडिकेट्स दैट द प्राइमरी oocyte आर वल्नरेबल टू डैमेज एज द एज। मीन जितने पुराने हो जाते हैं, अगर किसी की लेट ईयर में शादी हो जाती है तो वो जो यूज़ हो रहे हैं वो जो अरेस्ट हैं डिप्लोटिन में वो बहुत पुराने हैं, तो वो हो सकता है, कह रहे हैं कि इसकी वजह से भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, इसीलिए लेट एज में शादी या बर्थ से थोड़ा वो नुकसान होता है, ठीक है। ये वही, अब ये कंप्लीट ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर है, जिसमें बाहर से ये थीका एक्सटर्ना है जो कि फाइबरस है, इसमें फाइबर्स हैं। दिस इज थीका इंटरना जिसमें सेल नज़र आ रहे हैं। दिस इज सेल्यूलर लेयर, ये बीसीक्यू में देते हैं। और ये ग्रेन्युलोजा सेल्स हैं। दिस इज फॉलिकुलर एंट्रम एंड दीज सेल्स विच सराउंड्स दी oocyte आर कॉल्ड द क्यूमुलस oophorus, ठीक है। और ये रेड कलर की जोना पेलिसिडा है विच इज सिक्रेटेड बाय द oocyte एंड द ग्रेन्युलोजा सेल्स, और ये oocyte खुद है, ठीक है। ये दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये आना चाहिए, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, और फॉलिकुलर एंट्रम, क्यूमुलस oophorus, ये सारी, ये साइज़ मैंने आपको बता चुकी हूँ सारा कि क्या साइज़ है, ठीक है। म्योसिस 1 कब कंप्लीट करता है, क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी के पास कितना साइटोप्लाज्म आता है, कम आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा oogenesis के स्टेप्स, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओल्डर वुमेन, जो मैंने कहा था कि अगर लेट मैरिजेस होते हैं तो प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी ऑफ द प्राइमरी oocyte जो है वो, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। ये थोड़ा रिपीट लिखा हुआ है लेकिन बार बार पढ़ने से थोड़ा जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन टू प्रिपेयर आप प्रिपेयर अपनी तरफ से कर लेना। मैं प्रोफार्मा में थोड़े से कम दूंगी, लेकिन ये आप लोगों को इस लेक्चर में आने। इन्यूमरेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर मेन फीचर। व्हाट आर द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स में बता चुकी हूँ, फिम्ब्रिया है एंड इन्फंडिब्यूलम है और एम्प्यूला और स्टमस एंड द इंट्राम्यूरल पोर्शन। और फिर इसका फंक्शन ये है कि इट इज़ कवर्ड बाय द सिंपल कार्नर सिलेटेड एपिथेलियम, सो इट ट्रांसपोर्ट द ova and fertilization take place in the ampulla. Define the phases of the oogenesis, prenatal and postnatal. Define primordial follicle. Primordial follicle मैंने आपको बताया which is the primary oocyte which is surrounded by the flattened cells, ठीक है। Name various types of the ovarian follicle, जो मैंने कहा primordial follicle है, फिर graphene follicle है, mature follicle. What is the structure of the graphene follicle, मैंने अभी आपको बताया कि सारी layer. What are the features of the prenatal phases of the oogenesis में आप मैंने ये फीचर्स के भी कौन कौन सी लेयर्स हैं। व्हाट आर दी रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मेयोटिक सेल डिवीजन ऑफ द oocytes, मैंने ये पिछली लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। डिफाइन जोना पेलिसिडा, मैंने कहा इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर विच इज सिक्रेटेड बाय द oocyte itself and the granulosa cell. And thick antenna, thick externa are the thick antenna is cellular and thick externa is fibrous layer which is made by the connective tissue of the ovary. Define corona radiata. Corona radiata are the cumulus oophorus cells. When they ovulate, after ovulation they comes out are called the corona radiata, ठीक है। polar bodies क्या है, जिसमें साइटोप्लाज्म कम है। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डिफेक्ट इन दी ऑफस्प्रिंग ऑफ द ओल्डर वुमेन, जो मैंने बताया कि प्राइमरी oocyte जो है वो ज़्यादा तक अरेस्ट रहता है इस वजह से, ठीक है। थैंक यू बेटा।